हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डिस्कोर्स ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। सो दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा दैट देयर इज अ वैकेंसी फॉर द बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन एंड बाय 27, दैट मीन्स बाय टुमारो, द platform for online application form is going to open. So you can apply to the for the position of the Bihar Judiciary Examination through the website of the Bihar Public Service Commission, and then you can apply for the position, and the total number of vacancies 150. So this is the first video in the preparation of the Bihar Judiciary Examination of 2023. So we will make other videos also for that. So if you like this kind of the videos, if you want this kind of videos, so please subscribe my channel so that you can get more such videos for the your preparation in the examinations. Okay, तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए बिहार जुडिशरी के लिए तो जो बिल्कुल आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार जुडिशरी 2023 के प्रिपरेशन की शुरुआत। और ये रहा 2023 के लिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 2000 के क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2000 में जो आया था प्रीलिम्स का पेपर, उसके साथ हम लोग यहाँ पे तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था उसको देखते हैं। यहाँ पे द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज हियर। एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जब पेपर आया था 2000 में, तब जीएस और लॉ का पेपर कॉमन होता था। ठीक है, एक ही पेपर होता था जिसमें दोनों के क्वेश्चन होते थे। तो यहाँ पे आपको जीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और जो है लॉ के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फटाफट देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। और ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन जो होंगे उनको आप अच्छे से अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। कम से कम वो क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं बिहार जुडिशरी में, वो आपसे गलती ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज हियर, यू ऑल कैन सी, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी सार्क के कितने countries are the members है, how many members of the SAARC here. So it is about the SAARC, and the right answer of this question is 8. This is the right answer. Okay, next question is here, the minimum eligibility age of a candidate for the election as the president of India. What is the minimum eligibility age? What is the minimum age to be as a president of India? The answer is the 35 years. So the right answer is this one, 35 years. So this is the correct answer. Next question is here, who was the first lady president of India, president of Indian National Congress? So who was the first lady president of Indian National Congress? So among the options which are given, Annie Besant, Kamala Nehru, Srimati Sarojini Naidu and Srimati Vijaya Lakshmi Pandit. So the right answer of this question is here, that is the Annie Besant. She was the first women president of the Congress party. Okay. The next question is, that is the famous river Nile belongs to which country? So this belongs to Egypt. So this is how you can find the answer. The next question is that India occupies first position in the production of rice, tea, wheat, sugarcane. Right now it has been updated, so therefore they don't have any kind of first position in these categories. So we are skipping this question. The largest deposit of uranium in India are found in, so it is in the Andhra Pradesh. So it was the question when it was asked in the 2000. So at the time the state was Rajasthan, but right now the Andhra Pradesh is the state. The man who discovered Mount Everest as the highest peak of the Himalayas, who was the man? He was a geologist. Okay. Next question, that which stadium is popularly known as a cricket ka Kashi? Which stadium is being called as a cricket ka Kashi? So Lord is being known as a Makkah of the cricket, but this is the Eden Garden. It is known as a cricket ka Kashi. Okay. The next question is that Gary Kasparov is associated with which game? So he belongs to the game of chess. This is very popular person about that. The term third eye is associated with which kind of the sports? Tennis, hockey, cricket, badminton. So you all know that right answer, because India is a country where the people love so much cricket, and third eye is belonging to this term. India Wins Freedom is the written by whom? So India Wins Freedom was written by Abul Kalam Azad. Okay, so he was the author of this book. Who is the author of the book Sam? So किसने किताब लिखी है Sam, जो इसका नाम है बुक का नाम? Who is the author of this one? Let's see the options which are given here. What are the options? The options are Shakespeare, Desmond Bagley, Robert Ludlum,
and Salman Rushdie. So the right answer is here, that is Salman Rushdie has written this book. Same. Okay. Daughter of the East is an autobiography. So Daughter of the East is the biography of the Benazir Bhutto. Okay. So this is the right answer. Buddhism become global religion. It becomes as a global religion due to which efforts? Bindusar, Ashok, Kanishka, Harsha. It is because of the Ashoka. It becomes a global religion. Out of the following oldest dynasties, which is the out of the following the oldest dynasty, सबसे इसमें पुराना कौन सा वंश काल है, डायनेस्टी है, that is the Nandas. Okay, because Nand were before the Mauryas. Okay, so this is the answer. The British Prime Minister, we have to see the British Prime Minister during whose period India achieved independence. So who was the British Prime Minister during the regime of that? That was the Clement Attlee. Okay. Ajanta painting depicts scenes. It depicts scenes from what kind of the things? It depicts scenes from what kind of the matters? It depicts the scenes from the Buddhist story. So it is belonging to Jataks. Arjuna Award was given for excellent performance in the field of sports. You all know that about this. India's highest award given to army personnel for bravery. तो highest person क्या है? क्या अवार्ड मिलता है जब कोई सैनिक के मिलता है? वो मिलता है परम चक्र, परमवीर चक्र. Okay, this is the right answer. The person to receive the first Rajiv Gandhi सद्भावना अवार्ड. तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ स्किप करते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था. द सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय whom? द सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कोपरनिकस. Tamrapatra, what is Tamrapatra? Tamrapatra is a copper plate belonging to the Maurya dynasty. Okay, so this is how you can find that. This is the right answer. Let's see the next question. The biggest tribe of India. The biggest tribe of India is Gond. This is the right answer. A blindfolded lady holding a balance in her hand is the universal system symbol of, that is justice. आपने देखा होगा जब कोर्ट में एक जो है लेडी जो है ब्लाइंड फोल्डेड होती है, आंखों पट्टी बंधी होती है और साथ में तराजू लिए होती है, तो उसको बोलते हैं जस्टिस का सिंबल. द टर्म हैबियस कॉर्पस इज एसोसिएटेड विद द लीगल सिस्टम. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड डज नॉट ट्रेवल. कहाँ साउंड जो है ट्रेवल नहीं कर, जहाँ ध्वनि पहुँच नहीं पाती है. द साउंड डज नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम. सो दिस इज द राइट आंसर. वैक्यूम इज द राइट आंसर. The weight of an object at the poles is greater than at the equator. This is because of what? क्यों ऐसा होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो वेट बढ़ जाता है because of the gravitational pulls is more at the earth's surface. So therefore what you find that this is a right answer. Okay. The water in open pond remains cool even in the hot summer. So whenever, why this is happening? Because water absorbs heat less rapidly than the atmosphere. So this is the reason that water in open pond remains cool even in the hot summer. यानी गर्मियों में ठंडे पानी क्यों रहता है तालाब का? क्योंकि वो हीट को कम जो है एब्जॉर्ब करता है पानी. ठीक है. इन द अर्थन पॉट यानी जो मिट्टी का घड़ा होता है, कूलिंग ऑफ द वाटर डिपेंड्स अपॉन. तो ये है तो आउटसाइड टेम्परेचर पे भी होता है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी होता है, विंड भी होता है, इसलिए सभी आंसर सही है यहाँ पे. तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल द अबव. दिस इज द राइट आंसर. ग्रीन प्लांट्स इन सी आर यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ फिश. यानी ग्रीन प्लांट जो समुद्र के अंदर होते हैं वो किसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं? फिश के लिए, क्योंकि बिकॉज दे गिव आउट द ऑक्सीजन्स. सो देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर. पल्स रीडिंग इज डन बाय डॉक्टर्स टू फाइंड आउट. व्हाई द डॉक्टर इज डूइंग द पल्स रीडिंग? इट इज टू फाइंड आउट द हार्ट बीट्स. It is very the question which you can see. See, in Bihar Judiciary, the questions from the science are coming so much. So therefore, you all need to prepare science very, with very thoroughly. Thoroughly means not the way that it should be to go with the text books of that, rather than to go with the general science books. Okay. Now the next question is that in high mountain region, bleedings through nose occurs because. Why it happens जब आप पहाड़ों पर चढ़ते हैं and then there is a bleeding from the nose occurs? Why it is happening? Because the pressure at high altitude is greater than that of plains. Because of this, the
the nose bleeding is happening. So the right answer is B here. The pressure at high altitude is greater than that of plains. So the क्योंकि वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होता है और वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस the people bleeds from their noses as well. Now next question is this: which part of human body coordinate the various functions of different organs? इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी का पोर्शन है जो बाकी अंगों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन करता है? और ऑप्शन क्या है? ब्रेन है, नर्व्स है, हार्ट है, लीवर है। क्या आंसर सही होगा आप लोग फटाफट बताइए कमेंट करके, विच इज द राइट आंसर। देखिए हार्ट तो होता ही है, ब्रेन भी है, नर्वस है, लेकिन सबसे सबसे जो कोऑर्डिनेट करता है वो क्या है? वो करता है ब्रेन। ठीक है, तो इज द राइट आंसर। द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, कौन सा साइंस है जो ह्यूमन ब्यूटी के बारे में स्टडी करता है? देखिए जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए, द ऑप्शंस विच आर गिवन, दैट इज क्रिप्टोलॉजी, इट इज अबाउट द कोड एंड ऑल दिस स्टडीज। साइकोलॉजी इज अबाउट दिस मेंटल स्टडी, फिजियोलॉजी इज अबाउट द फिजिक, and then the right answer is calcology, that this talks about the human beauty. It talks about the human beauty. So therefore this is the right answer. Now during sleep, blood pressure of a man, what happens? जब आदमी सोता है तो क्या ब्लड प्रेशर घटता है या बढ़ता है? आप बताइए कमेंट करके क्या राइट आंसर है यहाँ पे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। द राइट आंसर इज इट डिक्रीजेज। ओके, सो इट डिक्रीजेज, दिस इज द राइट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सन रेज इन द मॉर्निंग आर लेस हॉट देन एट नून, बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? सुबह जो होता है सूर्य की जो किरणें होती है वो कम जो है गर्मी देती हैं जबकि दिन की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा किस लिए होता है? इट बिकॉज ऑफ दिस रेज इन द मॉर्निंग ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस देन नून, क्योंकि सुबह क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बहुत दूर से आती हैं और वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो उतनी गर्म नहीं रह पाती हैं, इसलिए सुबह के टाइम जो है सूर्य की जो गर्मी होती है वो कम होती है। इन द ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हैपेंस वेयर, मनुष्य के शरीर में ज़्यादातर डाइजेशन का काम कहाँ पे होता है? दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसकी एक लिस्ट जरूर बना लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं? एवरग्रीन है। तो क्वेश्चन का आंसर स्मॉल टेस्टाइन, छोटी आंत। दिस इज द राइट आंसर। स्मॉल टेस्टाइन, in that portion of the body, human body, digestion mostly happens. Okay, the next question is that fruit keep fresh in a refrigerator for longer period because, ऐसा क्यों होता है कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रूट रखते हैं वो लॉन्गर टाइम के लिए जो है वो फ्रेश बना रहता है? वाई दिस इज हैपनिंग? इट हैपन्स बिकॉज एट अ लो टेम्परेचर बायोकेमिकल प्रोसेस एट लो रेट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब आप टेम्परेचर कम किए रहते हैं तो जो बाकी केमिकल जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है वो कम होता है, इसलिए फूड का जो है या फ्रूट जो होते हैं वो काफ़ी देर तक फ्रेश बने रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, लूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, यानी चंद्र ग्रहण कब होता है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि चंद्र ग्रहण कब होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स हियर। इट हैपेंस, कब होता है ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये हर साल कभी ना कभी ये होता ही रहता है। तो इट हैपेंस व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, जब जो है पृथ्वी जो है सन और मून के बीच में आता है तब वहाँ पे होता है लूनर इक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आफ्टर टेकिंग हैवी डाइट वन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ वाई? जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? बिकॉज वाई दिस इज? द ऑप्शन विच आर गिवन, diaphragm can move less freely, sternum does not move, the movement of muscles becomes very less. The right answer is this one, because the problem is in breathing, so the reason must be also from the chest side. So diaphragm which is there, it is not moving very easily, it is not moving as freely as when you are having the less diet. Okay, next question which you all can see here, which metal is mixed with gold while इन ऑर्नामेंट्स? किसको हम लोग गोल्ड में मिक्स करते हैं जब हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं? एंड द राइट आंसर इज दिस कॉपर. ओके, दिस इज द राइट आंसर. सोना जो होता है वो मिक्स करके बनाया जाता है जब ज्वेलरीज बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. एप्पल्स मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इट वाज. सो एप्पल तो एक सेब भी होता है, लेकिन ये क्यों ज़्यादा पॉपुलर रहा है? क्या ये वेदर सेटेलाइट है, इंडियन सेटेलाइट है? क्योंकि एप्पल सेटेलाइट के बारे में आइए देखते हैं और क्या ऑप्शंस यहाँ पे हैं. तो द नेक्स्ट ऑप्शन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यही इसका आंसर सही है. ठीक है, यहाँ पे सेब मत समझ लीजिएगा, ये सैटेलाइट की रिगार्डिंग था. और ये 2000 का क्वेश्चन है दोस्तों,
तो उस समय जो है इस सब चीज़ों पर था, और फिलहाल अभी भी एक क्वेश्चन जो है सदाबहार क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वॉज फर्स्ट गिवन बाय whom? जीरो का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? तो आपको पता ही है, आपने मनोज कुमार का गाना सुना होगा, भारत है वो देश जिसने जीरो शून्य किया, शून्य को जो है डिस्कवर किया। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, भारत ने देश विश्व को शून्य दिया। ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, अ फ्यूज वायर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आप फ्यूज वायर को क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से? देखिए दोस्तों, जो साइंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं बिहार में, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप साइंस को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लें, ठीक है, बिकॉज इट मेक्स काइंड ऑफ डिफरेंस इन द क्रिएटिंग द मेरिट्स। जब मेरिट बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं इसके वजह से डिफरेंस आ ही जाता है। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, सो प्लीज़ गो विद दिस वन, ओके, बिकॉज इट प्रिवेंट टू हाई एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पासिंग थ्रू द सर्किट। This is the right answer. The D is the correct answer here, because it prevents too high an electric current from passing through the circuit. This is the right answer. Distance in navigation is measured in. जब आप नेविगेशन में डिस्टेंस करते हैं, नेविगेशन का मतलब होता है जब आप जो है समुद्री यात्रा करते हैं तो कब किस प्रकार के दूरी को कैसे आप मापते हैं, किस यूनिट में मापते हैं। तो उसका आंसर क्या है? नॉटिकल माइल्स में करते हैं। जब भी नेविगेशन की बात करते हैं, नेविगेशन का मतलब समुद्री यात्रा की बात यहाँ पे है। Whenever you are doing a sea voyage, then you always go with the nautical miles. Okay, which of the following is the best conductor of electricity? Among this, which is the best conductor of the electricity? The right answer is the warm water. Warm water is the best conductor of the electricity. The next question which is here, it is with respect to the retina. Retina in the eyes act as, so what kind of action they do? Retina, okay, so it is like a film in the camera. So this is the right answer. Retina is like the film in the camera. So this is the right answer. The next question is here, the precious stone diamond is nothing but, what is the precious stone? It is a high quality natural glass, a variety of mica, a form of carbon, a special type of sand. So what is this one? It is a type of the carbon. So this is how you can find that. The right answer is this one. Just let me highlight the right answer. See here. So it is a kind of the form of the carbon. Okay. द गैस यूज इन सोडा वाटर, जो आप गैस यूज करते हैं सोडा वाटर में, इट इज ऑफ विच काइंड ऑफ द गैस? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मार्स गैस. ऑफ कोर्स you all know that it is the carbon dioxide. So the gas which are being used in the soda water, it is the carbon dioxide, and the answer is B here. Oxygen is transported to every cell of the body through which? Whenever the oxygen is going to transport into the entire body, it is going to be done by the red blood cells. So this is the right answer. जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, that is being called in Hindi, they are helping us to transplant the oxygen throughout the body. The next question which is here, just let's see, it is from the Indian Evidence Act. Now from here onwards, the questions are coming from the law subjects, okay? And the total number of the question which had been asked in the 2000 in the year 2000, it was the 101. So let's see that how many questions are there. 50 questions from the law, and what kind of subject they had covered. Okay, the next question is here from the law subject here, the Indian Evidence Act. So here you can see it, there are some statement has been given. So the statement is like that: applies to proceeding before an arbitrator. It does not apply to this one. Does not apply to proceeding before an arbitrator. Yes, it is correct. Does not apply to appeals. It is also not correct. It's basically a substantive law. So therefore, what you find that the right answer of this question is here. That is, you can say does not apply to the proceeding before an arbitrator. If you just go to the interpretation class section 3 and all these, you will find the answer to this question. Okay, next question which you all can see, whenever it is provided in the Indian Evidence Act that the court may presume a fact. जब कभी भी कहा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में the court may presume the fact, so what kind of the things will happen? The whenever I say court may presume fact, so the answer which are options which are given here, may call for proof of the fact. The second is the court is bound to regard that fact as proved. The parties can presume that the fact as proved, and the last option is that fact is conclusive proof. So which is the right answer here? The right answer here is that the court may call for proof of the fact. So this is the right answer. Okay,
So my dear friend, these are the very classical questions, and these are the questions which are very evergreen. So I request to all of you, please go to the previous year's papers. As you see the video which I am here, which I am which I have uploaded, and now you are watching that one, it will help you highly for the preparation of your Bihar Judiciary examination of 2023. So please subscribe my channel so that you can get more such videos in the future. So just go to the next question. The next question which you all can see here: under the provision of Indian Evidence Act, admission and confession has the same meaning? No, it is not. Admission and confession have a different meaning? Yes, it is correct. Admissions are in matter in criminal matter? It is not like this. Confessions are a matter in civil trial? It is not like this. So the right answer of this question which you can find, that is the B here. So let me highlight this B here so that you can get the right answer. So please do the practice and never answer wrong of any question which had been asked in the previous years. Okay, relevant entries in the books of accounts alone. So the entries in the books which has been done of the account, whether they are can be helpful for the the evidences or not, for that the question had been asked. So the question options which are given here are sufficient to charge any person with liability? No. Can be taken into account consideration in a criminal trial? That is the things which is given here. No, it is not like this. Are not sufficient to charge any person with liability? Yes, it is correct. Can help a judge in deciding a suit? No. So the right answer of this question is, that is the C. Okay, so this is how I am going to highlight here. The C is here. Are not sufficient to charge any person with the liability. The next question which you all can see, the question before the court of wreck of a ship protest made by the captain dash attendance cannot be produced. So whether it is a relevant fact or it is not a relevant fact? Yes, it is a relevant fact. So there is no doubt about this. It is a kind of the relevant fact here. Okay, in criminal cases, the fact that the person accused is of good character. So whenever a case is going on with respect to criminal matters, and a question comes about that the person accused is having a good character, whether it is a relevant fact or it is irrelevant fact. So of course it is a relevant fact. So the B is the correct answer of this question. Contents of a document can be proved by. A content of documents can be proved by what kind of the measures, what kind of the things? It can be proved by the primary as well as the secondary evidence. So this is the right answer of this question. Okay, so now my dear friends, so for this you can refer to section 61 of the Indian Evidence Act. Okay, it will help you to find the answer of this question. My dear friends, please recall all this question. आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, इन सबको अच्छे से सेक्शन को, जो सेक्शन यहाँ पूछे गए इन सेक्शन को तो आप एक बार बेल एक्ट पे जाके जरूर देख लीजिएगा. ठीक है. Where a document purporting to be a power of attorney duly authenticated as required by law is produced. यानी जब कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड किया गया है, एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ इज प्रोड्यूस, द कोर्ट कैन टेक इट एज अ कंक्लूसिव प्रूफ. द कोर्ट में प्रिज्यूम इट एग्जीक्यूशन ऑथेंटिकेशन. द कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट्स एग्जीक्यूशन एंड ऑथेंटिकेशन. द कोर्ट शैल प्रिज्यूम. कोर्ट यहाँ क्या करेगा? कोर्ट विल शैल प्रिज्यूम लाइक दैट. ओके, इट नॉट लाइक द वर्ड मे प्रिज्यूम. सो द सी इज द correct answer. So for this one you can refer to section 85 of the Indian Evidence Act. Okay, next question. The burden of proving the existence of circumstances bringing the case within the general exception in the Indian Penal Code. जब कोई person accused है and now he want to get the help from the general exception where he can prove that he is innocent, तो वो liability किस पे आती है कि वो जो है जनरल एक्सेप्शन का उसको लाभ मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए. इट इज़ अपॉन द एक्यूज, क्योंकि एक्यूज को ही प्रूव करना पड़ता है कि वो जनरल एक्सेप्शन में आता है. तो फॉर दैट यू ऑल नीड टू रेफर टू सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. भाई ये जो सेक्शन मैं लिख रहा हूँ, इन सेक्शन को तो आप जरूर एक बार जाके पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि इन सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं दूसरे तरीके से भी. तो एक बार इनके जो इलस्ट्रेशन हैं, इनके जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लें. ठीक है. एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज टू बी डिसाइडेड. यानी किसी एविडेंस का जो एडमिसिबिलिटी है वो कौन डिसाइड करेगा? इट वुड बी डिसाइड बाय द जज. ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? वो जज डिसाइड करेगा. सो दिस इज द राइट आंसर. और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जाइए सेक्शन 136 को पढ़िए. 136 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन ये आया हुआ है. तो दोस्तों ये जो सारे सेक्शंस मैं आपको यहाँ पे लिख भी रहा हूँ ना,
इन सेक्शन को आप जरूर देख लीजिए और ये पेपर को आप अच्छे से देखिए। हालांकि पैटर्न 2000 में कुछ और था और 2023 में कुछ और है, ठीक है, लेकिन मोटा मोटी आप अगर देखिए क्वेश्चन जो हैं जो आए सब्जेक्ट से वो आ सकते हैं और आते ही हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको ये मत समझिएगा कि 2003 में पेपर आया, 2000 का पेपर है तो अब ये रेलिवेंट नहीं है, इसके क्वेश्चन रेलिवेंट हैं, पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसके वजह से आप अपने आप को जो है ये इस कंफ्यूजन में मत रखिएगा, क्वेश्चंस नहीं आ सकते। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एज अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन of attempting murder of a police officer whilst on his trial before B. A session judge can be examined as to what occurred, यानी किसी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने मामला चल रहा था जहां पे अक्यूज्ड ए ने जो है बी पे पुलिस ऑफिसर को मर्डर करने की कोशिश किया, तो क्या सेशन जज को बुलाया जा सकता है? एज ए कैन बी एग्जामिन एज टू व्हाट अकर्ड, ए कैन नॉट बी एग्जामिन, ठीक है। As to what occurred, a question cannot be asked to A cannot be administered oath. So इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? The right answer is A can be examined as to what occurred. तो ठीक है, so this is the right answer. And इसके लिए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, आप जाइए सेक्शन 121 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास बाय असिस्टेंट सेशन जज, जो है एक जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो जजमेंट है वो कौन दे रहा है? वो असिस्टेंट सेशन जज है। क्या दे सकता है ये सजा कि असिस्टेंट सेशन जज है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का सजा दे सके? वो दे ही नहीं सकता है। वो कितने साल तक का सजा दे सकता है? वो जो है केवल है 10 ईयर्स की तक की सजा दे सकता है। देखिए ये क्वेश्चन किससे है? ये क्वेश्चन आया है सीआरपीसी से। तो दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो कोर्ट और कोड का स्ट्रक्चर है, जो शुरुआत के कुछ सेक्शंस हैं, उनको आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए और आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो उसके शक्ति के बाहर, इट इज़ बियॉन्ड हिज पावर, असिस्टेंट सेशन जज लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा नहीं दे सकता है। तो ये सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इन सर्टन केसेस एनी पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। Second, and can arrest any person without an order from a magistrate and without a warrant. So okay, so देखिए इन सर्टन केसेस की बात किया गया, सारे केसेस की बात नहीं किया गया दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये क्या कह रहा है? कुछ मामलों में जो है पुलिस ऑफिसर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट के। तो ये बिल्कुल सही है भाई। कब कर सकता है? जब कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो वो वहाँ पे उसको अरेस्ट कर सकता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब होगा तो वहाँ पे ये कर सकता है। इसके लिए आप जाइए, अरेस्ट को पढ़िए अच्छे से, अरेस्ट में को अच्छे से आप पढ़िए, 43 सेक्शन को अच्छे से पढ़िए और 41 पढ़िए, 42 पढ़िए, सारे सेक्शन को अच्छे से पढ़िए क्योंकि इन सारे सेक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एनी प्रॉपर्टी विच मे बी अलेज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि अलेज किया जाए, जिस पर आरोप लगाया जाए चोरी किया हुआ है या फिर जो है सस्पेक्टेड है, तो क्या अलेज किया जाता है सस्पेक्टेड है तो या स्टोलन है, चोरी किया हुआ है, तो क्या उसको पुलिस ऑफिसर सीज कर सकता है? ऑफ कोर्स द पुलिस ऑफिसर कैन सीज दिस वन। सो द बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके लिए दोस्तों आप सेक्शन 102 ऑफ सीआरपीसी को जरूर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इफ अ हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विथ अनदर वुमेन और कीप्स अ मिस्ट्रेस, यानी जब हस्बैंड ने किसी और औरत के साथ जो है साथ शादी कर लिया या फिर उसको अपनी मिस्ट्रेस के तरीके से रह रहा है, तो क्या ये वाइफ के पास एक ग्राउंड है कि टू रिफ्यूज लिव विथ हिम? यस, इट इज़ वन ऑफ द ग्राउंड। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सीआरपीसी सेक्शन 125, जब वो वाइफ उसके साथ अलग रहती है और वो मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अ मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ अल्टरेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। दोस्तों अब ये चेंज हो गया है, अब यहाँ पे जो है 500 रुपये वाला कोई लिमिट नहीं रह गया है, तो ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी 125 ऑफ सीआरपीसी से आया हुआ है, तो 125 ऑफ सीआरपीसी को आप दोस्तों अच्छे से जरूर पढ़ लें। Where two courts subordinate to the same high court have taken cognizance of the same offence and a question arises to which of them shall try, यानी कि जहाँ दो कोर्ट हैं और दोनों जो है एक ही हाई कोर्ट से सबॉर्डिनेट हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि कौन इसको ट्रायल करेगा उस क्वेश्चन केस को। देन हु विल डिसाइड हाउ इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड देयर। सो फॉर दैट
इट इज द क्वेश्चन सेल्फ डिसाइड बाय द कंसर्न हाई कोर्ट, वही हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि ट्रायल कौन करेगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप सेक्शन जो है 180, जो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इसके लिए आप सेक्शन 186 को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए, 186 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है दोस्तों, जो सेक्शन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ आप उन सारे सेक्शन को एक पेपर पर जरूर नोट कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इफ अ कंप्लेंट इन राइटिंग इज मेड टू अ मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, यानी जब एक कंप्लेंट किया गया है राइटिंग टू मजिस्ट्रेट एंड हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, आपने मजिस्ट्रेट को राइटिंग में कंप्लेंट दिया लेकिन वो कॉम्पिटेंट ही नहीं कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, he shall return it for the presentation to the proper court with an endorsement to that effect। तो वो क्या करेगा, जो प्रॉपर कोर्ट है उसके पास ये मैटर भेजेगा और एक इंडोर्समेंट के साथ भेजेगा कि भाई आप इसको कमिटल कीजिए, और ये किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 201 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, ये सारे सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। बेल टू अ पर्सन अप्रहेंडिंग अरेस्ट, यानी जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है और उसको अप्रहेंशन है इस बात का कि उसको कभी भी अरेस्ट कर सकता है, वो बेल के लिए अप्लाई कहाँ कर सकता है और कौन उसको बेल दे सकता है। दोस्तों द फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल किसको कौन दे सकता है, इट कैन बी बाय द हाई कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एन अपील अगेंस्ट एक्विटल मेड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल लाई, यानी जो है एक्विटल जो है ऑर्डर दिया गया था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा और उसके विरुद्ध अगर आपको अपील करना है तो कहाँ अपील करेंगे, वेयर यू विल गो टू दिस, इट विल गो टू द सेशन कोर्ट, यू विल गो टू द सेशन कोर्ट टू अपील। द रजिस्ट्रार ऑफ अ प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कैन व्हेन कन्फर्ड विद जुरिडिक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड द ऑप्शन विच आर गिवन हियर, ट्राई सूट्स ऑफ अनलिमिटेड पिक्यूनियरी, ये तो गलत है, ट्राई सूट्स अप टू लिमिटेड पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन, यही सही इसका उत्तर है। तो इसको आप मिटाइए यहाँ पे और इसको क्या करें, हाईलाइट कीजिए और यहाँ पे फटाक से आप जो है टिक कीजिए राइट आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट से उस समय आए थे, तो मैं फिलहाल अभी आंसर कर देता हूँ इसका, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि इसका आंसर किया जाए ना किया जाए। कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ सूट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, सो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रोविंशियल स्मॉल कॉसेज कोर्ट्स कैन ट्राई ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कैन ट्राई ए सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज, कैन नॉट ट्राई ए सूट। तो ये जो है क्वेश्चन ये क्या कर सकता है, ये जो है स्टेट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है सूट नहीं फाइल कर सकता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आया था 2000 में बिहार जुडिशरी एग्जाम में। The next question is an appeal against an order of the provincial small causes court if applicable shall be, यानी ये कहाँ अपील किया सकती है स्मॉल कॉजेज कोर्ट के मैटर्स को, आप कहाँ अपील करेंगे, इट वुड बी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही अपील करेंगे। दिस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेव एज प्रोवाइडेड बाय द प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट अ डिक्री और ऑर्डर मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बी, ये हमेशा क्या होगा, ये अपीलेबल होगा। Say which of the following suits are accepted from the cognizance of the provincial small causes courts. So this is the question which is not going to come very much here, but it is for that a suit for recovery of rent other than house rents. तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उतना आने वाला नहीं स्मॉल कॉजेज कोर्ट का, लेकिन फिर भी चूंकि उस समय था तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। कोर्ट एज डिफाइंड अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996, तो ये क्वेश्चन है कोर्ट एज डिफाइंड इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट मीन्स, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द आर्बिट्रेशन एक्ट। अब देखिए दोस्तों इससे क्वेश्चन आने वाला तो नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स द मीन्स ऑफ द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ जुडिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड्स द हाई कोर्ट्स, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, मैटर्स क्लियरली इलीगल और प्योरली क्रिमिनल, हम लोग फिर भी यहाँ पे एक बार कर लेते हैं क्वेश्चन, चूंकि पेपर आया हुआ था तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या था। तो जो क्रिमिनल मैटर्स है क्या उसको आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं, नहीं उसको रेफर नहीं कर सकते। स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ लॉ इन आर्बिट्रेशन, क्या ये आर्बिट्रेशन के पास रेफर किया सकता है, कैन बी रेफर टू आर्बिट्रेशन, यस किया सकता है। अ पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, क्या वो पार्टी टू एग्रीमेंट जो होता है क्या वो कर सकता है, कैन अप्लाई एट एनी स्टेज बिफोर पासिंग द डिक्री, ये कर सकता है। द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, जो पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन है क्या वो आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, यस दे आर फ्री टू अपॉइंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। एन आर्बिट्रेटर मस्ट, देखिए ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नहीं आने वाले, फिर भी चूंकि पेपर है तो वी शुड सॉल्व दिस वन एज पर सिलेबस।
they are not going to come. So it is may be of any nationality unless otherwise agreed by the parties. अब किसी भी देश का हो सकता है भाई. An arbitrator can, जो ये क्वेश्चन है, कैन बी रिमूव, कैसे रिमूव कर सकता है, किस प्रकार से रिमूव कर सकता है. कैन बी रिमूव इवन इफ ही इज नॉट गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो भी इसको आप रिमूव कर सकते हैं. द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल इज बाउंड बाई, किससे वो बाउंड है भाई आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, वो है शैल नॉट बी बाउंड बाई द सीपीसी. और ये इंडियन आर्बिट्रेशन वो अप्लाई नहीं होता, इसलिए लोग आर्बिट्रेशन को ज़्यादा करते हैं. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन यहाँ पर सीपीसी से जो स्टार्ट होता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रिफ्यूजिंग एन एडजर्नमेंट आस्क्ड फॉर विदाउट सफिशिएंट कॉज is a misconduct of an arbitrator or not. So this is how you can find that is not misconduct of an arbitrator. चलिए यहाँ से सीपीसी शुरू होता है 86 से, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया सीपीसी का. ठीक है, अब चलिए हम लोग सीपीसी के क्वेश्चंस को यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. चलिए, द सेक्शन इन द सीपीसी कैन बी अमेंडेड बाय whom? Sorry, the section of CPC can be amended by the parliament only. Okay, the right answer is A. The order and rules in the first schedule of the CPC, क्या है ये? क्या ये गाइडलाइंस है merely, या will prevail over the provision of section, can not override the provision in section. तो ये क्या है? They are subject to the provision of sections. So this is how you can find that they can't override the sections of the CPC. Subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law, suits for the recovery of possession of immovable property must be instituted in the court. यानी प्रिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन को ध्यान रखते हुए सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे फाइल किया जा सकता है. जस्ट गो टू द ऑप्शन. कहाँ पे होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का? विद इन हुज लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. ये जो है इसका डी इसका जो है सही आंसर है. ठीक है, तो इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं. हाईलाइट करने के बाद इसको हम लोग टिक लगाते हैं कि करेक्ट आंसर जो डी है. चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुकेटा अप्लाइज. द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुकेटा कहाँ अप्लाइज करता है भाई? ये अप्लाइज किस में कर सकता है? क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकता है? नहीं. ठीक है, या सूट में ही केवल करता है? नहीं. ठीक है, ये कहाँ अप्लाई कर सकते? अप्लाइज टू एजुकेशन प्रोसीडिंग ऑल्सो. यस, ऑल्सो है यहाँ पे वर्ड यूज. देखिए दोस्तों, इस आंसर को ज़्यादा ध्यान, क्वेश्चन को ज़्यादा समझिए ध्यान से, आप सबको समझिए. ये क्या कह रहा है? ये तो होता ही है, लेकिन ओनली वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये जरूरत नहीं है. ये एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग में भी अप्लाई होता है, यानी सूट ऑल्सो लिखा हुआ, यानी सूट को इंक्लूड करते हुए, इसलिए सी इसका आंसर सही हुआ. ठीक है, द सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सियस क्लेम और डिफेंस कैन बी अवॉर्डेड. जो कंपनसेटरी कॉस्ट होता है उसको कितना तक लगाया जा सकता है? तो वो लगा सकता है 3000 रुपीज़ तक का. और ये किस में दिया गया प्रावधान? देखिए, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 35A ऑफ द सीपीसी. इसको आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं. ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट्स. क्या बुक ऑफ अकाउंट्स को आप एग्जीक्यूशन के टाइम अटैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको ये पता होगा ही. ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, आर नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट इन सेल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री. ठीक है, और इसके लिए सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी को आप एक बार जरूर ध्यान से देखिए. सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी. ठीक है, मैं यहाँ दोबारा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सही से लिखा था तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ. ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए. एन अपील सेल लाई. अपील जो होता है लाई करता है फ्रॉम ऑल ऑर्डर्स पास बाय द कोर्ट. क्या सारे ऑर्डर जो पास होते हैं उसके अगेंस्ट लाई करता है? ये तो नहीं है. ओनली फ्रॉम सच ऑर्डर एज प्रोवाइडेड इन द सीपीसी. उन्हीं ऑर्डर के अगेंस्ट होगा जो कि सीपीसी में बताए गए हैं. ठीक है, सबके अगेंस्ट नहीं होगा. ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एग्जेम्प्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट. यस, दिस इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन देखिए यूपी जुडिशरी में भी आ चुका है. तो देखिए, अगर आपने यूपी की तैयारी की हो तो उस क्वेश्चन को याद से रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. ठीक है, अ प्लेंटिफ कैन नॉट यूनाइट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट. ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये तो कर सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है. कैन यूनाइट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन इन द सेम केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट. यस, ये कर सकता है. एक से ज़्यादा मुद्दों को यानी कॉज ऑफ एक्शन को वो यूनाइट कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है? डिफेंडेंट भी सेम होना चाहिए. ठीक है, डिफेंडेंट अगर अलग अलग होगा तो नहीं होगा. तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे वो सही है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे द कोर्ट कैन अलाउ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग. जब आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो क्या किसी भी लेवल पे आप जाके प्रोसीडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, इट कैन बी डन.
रीडिंग के किसी भी स्टेट पे जाके आप कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों मैं आपको कहूँगा इसको तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। वो क्या है, ऑर्डर 6 रूल 7 ऑफ CPC, ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कोर्ट हैज़ नो पावर टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ पार्टीज एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही? ये तो गलत है। हैज़ पावर टू रिकॉर्ड एडमिशन ओनली ऑन इशू ऑफ लॉ, ये भी नहीं है। ये भी स्टेटमेंट नहीं कि ओनली इशू ऑन लॉ होगा तभी होगा। 96 का थर्ड ऑप्शन क्या है, हैज़ पावर टू रिकॉर्ड ऑफ एडमिशन पार्टीज एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। जी हाँ, वो किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे रिकॉर्ड कर सकता है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नो वन शैल बी ऑर्डर टू अटेंड द कोर्ट इन पर्सन टू गिव एविडेंस। कोई भी व्यक्ति को आप ऑर्डर नहीं करेंगे टू गिव टू गिव एविडेंस unless he reside within 50 kilometers, unless he reside within 100 kilometers, unless he reside within 1000 kilometers, unless he reside within 500 किलोमीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, मतलब ये 2000 में तो आया ही है, इसके बाद भी आया है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, अनलेस ही रिसाइड विद इन 500 किलोमीटर फ्रॉम द कोर्ट हाउस। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आंसर। इसके लिए आप ऑर्डर 16 रूल 19 को जरूर देखिए, ठीक है। ऑर्डर 16 रूल 19 में दोबारा साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ। ऑर्डर 16 और रूल 19 को जरूर से देख लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिडेविट्स टू बी फाइल्ड इन कोर्ट कैन बी authenticated by minister of state, can not authenticated by except by the judge presiding, and then authenticated by a judge, magistrate or a notary. Yes, it can be by the authenticated by the judge, magistrate or the notary. So the right answer is C is here. This is the right answer. Okay, the next question is there, an application for review of an order for a decree can be made. रिव्यू का जो एप्लीकेशन के लिए जो भेजना है वो किसको कहाँ पे कर सकते हैं, टू द अपीलेट कोर्ट, बाय एन एडवोकेट फॉर कैन बी मेड, कौन कर सकता है, क्या अपीलेट कोर्ट करेगा, by an advocate for a party, by session judge, or the last option by the to the court that made the order or passed to the decree. Yes, this would be this by this one. Okay, 99 क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आंसर डी हियर। इसके लिए आप क्या कीजिए, सेक्शन 114 को जरूर पढ़ लीजिए रिव्यू के बारे में, ठीक है, CPC के बारे में। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 2000 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, 2000 का जो बिहार जुडिशरी का पेपर था उसका क्वेश्चन लास्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट कैन एक्सरसाइज। तो इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट कौन एक्सरसाइज कर सकता है, फॉर किसके लिए कर सकता है, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। सो दिस इज द ग्राउंड। ओके, जब आपको लगे कि एंड ऑफ जस्टिस हो रहा है और अब्यूज हो रहा है तो कोर्ट इसको एक्सरसाइज कर सकता है। सो दोस्तों ये रहा पहला वीडियो बिहार जुडिशरी 2023 के प्रिपरेशन के लिए। आपको ऐसे वीडियोज और ऐसे ही और क्वेश्चंस के वीडियोस मिलते रहेंगे MCQs के लिए। न केवल हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ही सॉल्व करेंगे बल्कि और जो है MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन से बेहतरीन हो और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी के लिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल है उसको जरूर प्रेस कीजिए, जैसे कि जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें आपको तुरंत उसके नोटिफिकेशन मिले और बिना डिले के आप उन वीडियोस पर जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों आपकी क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, आपके सुझाव, आपकी एडवाइस, ये आपके जो गुड कमेंट्स, ये सब मेरे लिए वेलकम है, जिससे मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज डू कमेंट्स, share this video to your friends so that they can also do the better preparation. And thank you all for watching this video. We will meet with another video. Till then, bye bye.